Good morning, everyone. I hope you all are happy, healthy, and fine. It's really nice to see our digital lobby flourishing with anxious, energetic, and sporty students, those who are all set to celebrate National Sports Day with a high zeal and enthusiasm. I'm not going to talk much about this day as we all are knowing quite well that how important it is to celebrate, rather to embrace sports to enlighten our spirit for being physically and mentally happy and healthy. This day is the birth anniversary of legendary hockey player Major Dhyan Chand. No one till date achieved such extraordinary caliber as he had, and his outstanding and incomparable talent helped him to earn the title Magician of the Hockey. So to remember him and as well as other sports person who have immense contribution to give recognition to India in several national and international level. Moreover, who all are motivating us by giving a sense of indomitable spirit to accept the challenges and overcome hurdles with a firm and smiling attitude. I know you all are excited to welcome our chief guest as well. Yeah, surely we will. So let's welcome our chief guest here, Mrs. Himlata Ursal. Let's welcome her. Before that, let's have a short glance to her achievement as a sports person, as it's difficult to summarize her achievement in few words, as Mrs. Himlata Ursal, a renowned coach and a former volleyball player who represent India and attained success in several national and international levels. She played 12 internationals, 20 senior nationals, 5 national games, and participated many a time as coach to train her team to attain excellency. She was the captain of Indian team in international level, achieved gold medals with Best Receiver Award. She was the coach of Indian team of U23 Asian Women's Volleyball Championship at Vietnam. She has awarded with the Maharashtra state government's highest award for volleyball, Sri Shiv Chhatrapati Puraskar in the year 1990-91. So here, let's welcome this towering sports figure to get a buzz on our digital celebration of National Sports Day. Here, I'd like to request Tiffany Barodia ma'am to welcome and felicitate our guest speaker, Mrs. Himlata Ursal. Our felicitation is going on, so please give a big round of applause virtually. Thank you, ma'am. Thank you so much. Please have a seat. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sparing your valuable time with us. We are honored. We are elated to have you here. Actually, I would like to share with you that from the day our students came to know that you are coming to our school, they were so excited to ask you so many questions. And they actually want to know your success story and obviously your struggle and hard work. Because we all know that without struggle and hard work, it's not possible to possess this place from where your name is enough to motivate others, those who dream to pursue sports as their career. And keeping this thing in mind, we wanted to give privilege to our students only to have an enthusiastic interaction with you. Here we are having our student representative, Shakshi Jain, head girl of our school, to get the privilege to interact with you. Definitely it would be better for them if they will get the chance to meet you physically, but we cannot deny the consequences of being locked down due to pandemic. So here our students are there with us virtually in this digital platform. Over to you, Shakshi. Are you there? Yes, ma'am. Over to you, dear. It's a great privilege for me to be able to interview such a great personality. Thank you, RMDIS, for giving me this wonderful opportunity. Ma'am, we would really like to know some more about you.
We all know about your success and prolonged survival the same. Ma'am, will you please tell us that whether your success story is all along a cakewalk or you too had to walk on eggshells? Morning to all of you. Sorry for the late. Actually attended some other program, my office program, and then come here. So sorry for the late. And yes, of course, it's not so easy for me. Like I'm not born with a golden spoon, you can say. I've struggled a lot, and of course, struggle say you can say उसका स्वाद कुछ और ही होता है. You remember all those things and अपना motivation, अपना destination सब आपको ज्यादा carefully you can handle. So yes, of course, I struggled a lot. Thank you. Yes, ma'am, that's really great. Definitely, we are proud to have such a renowned sports person with us. The way you made hard work and gave constant honest effort to make your path in your favor, you are really enough to inspire millions of Indian girls to choose sports as their career. Ma'am, was there any person who inspired you to stay on the track in spite of so many obstacles and difficulties? And if so, how did you convert this inspiration into a major motivational effort? Uh, I'd like to say about my father. He was a wrestler, and because of some family background, or you can say my grandfather was not so much interested in sports, so he couldn't do so much in sports, though he was in very much interested. So he he is the main motivational behind me. वो हमेशा बोलते थे, नो आई का मुझे नहीं मिला, वो तुम करो, जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, आई विल सपोर्ट यू, डू वॉट एवर यू वांट, डू अचीव योर ड्रीम्स, गो फॉरवर्ड, जो भी चाहिए मुझे, मेरी तरफ से, हर तरफ से आपको हेल्प मिलेगी. एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ, यू कैन से बेसिकली फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. माय फादर वाज इन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, and we are total five brothers sisters, two sisters, we are two sisters and three brothers. So पांच लोगों का in that small saving salaries, it was very difficult to go through it. फिर भी उन्होंने, like मैं तो वॉलीबॉल में आई, my sister she is playing kabaddi, she played for the Indian Railways too, my brother is also a kabaddi player. सो उन्होंने बहुत ज्यादा हम लोगों को मोटिवेट किया. एंड ऑफ कोर्स आई टेल अबाउट माय मॉम, शी इज सो टोटली इंटरेस्टेड. और घर का लाइक कुछ भी काम करने नहीं देती थी. नो यू डू, यू जाओ ग्राउंड पे, जाओ जाओ स्टडी करो. कभी भी मुझे घर का कुकिंग करो या चाय का कप बनाओ, उठाओ या चाय बनाओ, कभी भी उन्होंने बोला नहीं. सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मैं उनका ही नाम लूंगी कि दे आर माई बैकबोन, यू कैन से. उनकी वजह से आज मैं इतना यहाँ तक पहुंची हूँ. लाइक स्ट्रगल के बारे में भी आई से कि इतना कि जब मैं हम लोग खेलते थे, तो जब तक मेरा पहला नेशनल नहीं हुआ तब तक मुझे शूज भी नहीं मिले थे. यू कैन से विदाउट शू आई वाज प्लेइंग. ट्रैक सूट वगैरह तो बहुत दूर की बात है. आफ्टर गेटिंग फर्स्ट नेशनल सिलेक्शन मुझे जो शूज मिले, तो डेफिनेटली स्ट्रगल बहुत किया है. एंड of course my mother father, they supported me a lot, like anything. That's really Thank you. amazing, ma'am, that almost पूरी family ने आपको support किया and you reached here. Yes, Ma'am, yes. do you feel that women sports person have to face more difficulties and obstacles to shine in this field? Is there any special taboo that dragged their spirit down in some cases? स्पेशली वुमेन साइड में आई से, मतलब मेरे बारे में आई कैन से आई एम टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ. तो पहले मेरे फैमिली में इवन हॉल में भी लेडीज नहीं आती थी, पूरा टाइम घूंघट में, किचन में, लाइक दैट इट वाज प्रीवियसली. फिर मेरे फादर ने ये चेंज बहुत किया है. ही फाइटेड विथ माय ग्रैंड पेरेंट्स कि नहीं, वो खेलना चाहते हैं, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है.
if she want to play, I'll make her play, जितना चाहिए खेलेगी. Even you can say मराठास में, in Maharashtrian families शादी वगैरह जल्दी करते हैं, तो ही वॉज स्ट्रांगली बिहाइंड मी कि नहीं, जितना चाहे खेलो, जितना चाहे आगे बढ़ो, आई विल नॉट फोर्स यू टू मैरी, ऐसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, लेकिन योर मेन गोल है, मेन अचीवमेंट है, वो अपना स्पोर्ट्स रखो. लाइक दैट वी केम फॉरवर्ड. और ऑब्स्टैकल्स आई कैन से, यस, एज अ गर्ल, एज अ वुमन बहुत फेस करना पड़ता है. नॉट इवन स्पोर्ट्स, बाकी फील्ड में भी हर जगह ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हर एक को देखने के लिए मिलते हैं कि एज अ गर्ल कितना हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है. तो डेफिनेटली आई विल से कि नो डाउट स्ट्रगल करना है, कर रहे हैं हम लोग, बट डोंट गिव अप. ये स्ट्रगल करके ही आप आगे बढ़ेंगे, और आपको ये स्ट्रगल का, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसका आपको हमेशा रिमाइंड करता रहेगा कि कहाँ से कहाँ जाना है, स्ट्रगल कितना कर रहे हैं, और वो जो एफर्ट्स ले रहे हैं उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने गिव अप नहीं किया एंड यू रीच योर सक्सेस एंड योर पेरेंट्स आल्सो सपोर्टेड यू अ लॉट. Thank you. Now, ma'am, we want to know something about the support you got from your family, friends, and especially your coaches who mentored you, trained you, and helped you to focus on your excellency. फ्रेंड्स तो बहुत कम है मेरे, बट यस डेफिनेटली फैमिली ने तो किया ही है सपोर्ट. इवन द कोच सपोर्टेड मी अ लॉट कि हम लोग स्कूल में ही, हमारा क्लब था, वहां पे ही हम लोग खेलते थे. एक्चुअली स्कूल से मेरा जब स्पोर्ट्स शुरू हुआ तो स्कूल में थे ओनली कबड्डी, खो खो एंड वॉलीबॉल, ये तीन ही गेम स्कूल में चलते थे. तो एज अ चाइल्ड सबको अट्रैक्शन बॉल का तो रहता ही है, सो मुझे भी हो गया, मैंने वॉलीबॉल ज्वाइन किया. ज्वाइन मैंने एक्चुअली बहुत लेट किया, 8th 9th स्टैंडर्ड में ज्वाइन किया, जो एक्चुअली बहुत लेट है. बट देन ऑल्सो आई वर्क हार्ड, सुबह शाम, स्कूल से पहले, स्कूल के बाद में बहुत प्रैक्टिस किया है. और इस सब में कोच ने भी बहुत हेल्प किया है. फादर ने तो कोच को बोल दिया था कि ये मेरी लड़की आपके पास है, आप जैसे चाहिए इसको बनाइए, मैं आपको पूछूंगा भी नहीं. अगर ये फेल भी हुई स्कूल में तो मैं पूछूंगा नहीं कि क्यों फेल हुई या किस लिए, बिकॉज आई नो कि स्पोर्ट्स में आप उसको बना रहे हैं. और सर ने भी, कोच सर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, इवन इन द स्टडीज. आप बहुत, मतलब ऐसे कम सुनाई देगा, लेकिन मेरे कोच ने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में भी बहुत हेल्प किया है. दिन भर, मतलब मॉर्निंग इवनिंग हम लोग प्रैक्टिस करते थे, आफ्टरनून जो भी स्कूल कॉलेज है वो, नाइट में सर, कोच सर घर आके मुझे पढ़ाते थे कि चलो, ट्यूशन वगैरह जाना होता नहीं था. तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया है, बहुत स्ट्रगल किया है. एंड इवन कभी कभी क्या, बहुत बार ऐसे हुआ है कि टूर्नामेंट जाना है, कहीं नेशनल जाना है, घर से उतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने से वजह से कुछ प्रॉब्लम आते थे, तो कोच सर हमेशा आके हेल्प करते थे. इवन माय क्लब टीम, जो भी क्लब का प्रेसिडेंट वगैरह थे, वो आके मुझे हेल्प करते थे फाइनेंशियली. तो उन सबका सपोर्ट है, और मैं सोचती हूँ, मतलब मैं मानती हूँ कि ये उनकी वजह से मैं आज ये दिन देख रही हूँ. अगर उन्होंने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती. Okay, ma'am. As now you are dedicated coach to mentor hundreds of students, do you feel any strategical difference in the process of training the students of your time and the students of recent age? Yes, definitely. Even I'll say not only players, students, और उनके पेरेंट्स भी आजकल बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है. पहले तो हम लोग खेलते थे तो कोई देखने भी नहीं आता था घर से कि क्या कर रही है बच्ची, है ग्राउंड पे, नहीं है, क्या खेलती है, कहाँ तक जाएगी, कुछ नहीं. दे जस्ट, हाँ चलो खेल रही है, यही उनके लिए बहुत था. लेकिन आजकल के पेरेंट्स बहुत अवेयर है, वो खुद आके देखते हैं, कोचेस से बात करते हैं कि मेरी बेटी या बेटा जो भी है क्या कर रहे हैं, कितना देर में वो कहाँ तक पहुंचेगी, क्या उसका लेवल कहाँ तक जा सकता है.
ये पेरेंट्स की तरफ से भी होता है एंड इवन द यू कैन से प्लेयर्स या स्टूडेंट्स जो भी है उनकी तरफ से भी बहुत अवेयरनेस बढ़ा है। पहले तो सिर्फ हम लोग मतलब मैंने जो देखा कि हम लोगों को सिर्फ इतना पता था, हाँ खेलना है, बस खेलना है, जो कोच बोलता है वो करना है, जो ऊपर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना है वो बस उतना ही लेते थे। लेकिन अभी के प्लेयर्स इतने ज्यादा डेडिकेटेड है और स्पेशली मीडिया वगैरह की वजह से जो आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इससे भी बहुत नॉलेज उनका गेन हो रहा है। दे कैन सर्च मेनी वीडियोस, उसका एक्सेलेंस देख देख सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं एंड टेक्निकल टैक्टिकल नॉलेज भी उससे बहुत उनका बढ़ता है। एंड इतना मतलब यहाँ तक कि कभी कभी स्टूडेंट भी कोचेस को पूछते हैं कि नहीं मैम या सर ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, इतना उनका नॉलेज, उतना उनका अवेयरनेस बढ़ा है। एंड आई थिंक डेफिनेटली इससे बहुत हेल्प हो रहा है प्लेयर्स को। पहले के जो भी टूर्नामेंट्स है या जो भी है, पहले इतना मीडिया कवरेज नहीं होता था, इसलिए देखने के लिए मिलता नहीं था। लाइक हमारे टाइम में दूरदर्शन के अलावा कुछ नहीं होता था। तो नाउ यू आर गेटिंग सो मेनी चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स, हर एक जगह से आपको लाइव मैचेस भी देखने के लिए मिलता है। उसका सपोर्ट बहुत, उसका आपके गेम में इम्प्रूवमेंट होने के लिए उससे बहुत हेल्प होती है और उससे ज्यादा जल्दी आप परफॉर्मेंस गेन कर सकते हैं। हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम चेंज होते ही टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर रही है अब स्पोर्ट्स में। यस यस, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन है, हर चीज में बहुत बदलाव आया है और बहुत उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहा है। इवन अपना इंडियन कंट्री के जो भी अभी आपने देखा है ओलंपिक्स में वगैरह कितने सारे मेडल्स मिले हैं। प्रीवियसली हम लोग कहाँ थे और अब कहाँ तक पहुंचे हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट। Yes, ma'am, India has developed a lot. यस यस। Last but not the least, I would like you to say a few words to our R&D International School students so that who dreams to pursue the career in sports ahead. See, first thing is this is your right time to dream a big. कैसा है, ये टाइम आपको वापस आप रिवाइंड नहीं कर सकते, ये वापस मिलेगा नहीं आपको। तो दिस इज द प्रॉपर टाइम टू वट एवर यू आर ड्रीमिंग अबाउट, लेट इट बी स्टडीज, लेट इट बी स्पोर्ट्स, जो भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में पूरा डेडिकेटली कीजिए, ड्रीम कीजिए, उसके लिए एफर्ट्स लीजिए। विदाउट एफर्ट्स कुछ नहीं होता है, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे ये स्पोर्ट्स में ही जाना है, हाँ मुझे स्टडीज में ही जाना है, जो भी आप साइड डिसाइड करेंगे उसमें बहुत डेडिकेटली कीजिए, बहुत एफर्ट्स लीजिए और जितना आप एफर्ट्स लेंगे उतना रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप बस सोचते रहेंगे हाँ अभी मुझे ये करना है, सोचने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट एक्ट करो और उसका रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। और जितना मैंने देखा है आपके यहाँ पे, वो विद्या मैडम है, शी इज ऑल्सो इंटरनेशनल, नेरकर सर है, ही इज ऑल्सो रेफरी। तो आपको बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले, स्पोर्ट्स टीचर्स भी मिले, दोज वो आपको गाइड कर सकते हैं, अच्छे डायरेक्शंस में आपको लेके जा सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी तरफ से पॉजिटिवनेस आना चाहिए, आपका विल पावर आप दिखाना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, तो मैं कैसे करूं। यू कैन आस्क देम, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, तो मैं कैसे करूं। वो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप आपके मैडम है, सर है, प्रिंसिपल मैडम सर जो भी है आपके, वो आप सब हेल्प करने के लिए तैयार है। आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए तो सब मिलेगा, सब हो जाएगा। Thank you so much, ma'am, for your kind and inspirational words. Your dedication and hard work has truly motivated us to move ahead to achieve our goals. Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक Over यू, to you, थैंक यू। Patralika, ma'am. Thank you, Shakshi. Please be there with us. And dear students, I know that you all are there with us and you all have experienced such a wonderful story. It's a story itself because you know that we can consider as it's Mrs. Himlata Ursul's ma'am's success story.
Okay, so obviously, I know that few questions are blinking on your minds also. So if anything is there that you want to ask ma'am, you can ask, but please drop your question on the chat box. Okay, first few questions I'm going to ask you to, I'm going to tell you to ask ma'am. Okay, so please, if you are having any kind of questions, write down in the chat box. Okay, I will definitely call your name to ask. By that time, ma'am, one thing I just want to know your opinion that last 2 years we all are actually locked down, and for a particular bracket of age group of students, especially for sports students, sports kid, athletics. Okay, it's a kind of huge loss for them. They are stuck at home. They are not able to do practice as they require to do, and all those things. Sometimes they are getting frustrated also because it's a huge loss for those students who want to opt sports as their career. Ma'am, what do you think, that is that gap visible? They will be able to bridge that gap that they have actually lost in last 2 years? एक्चुअली ये गैप है एक्चुअली बहुत बड़ा. 2 years इज रियली बिग स्पैन, स्पेशली इन स्पोर्ट्स, क्योंकि आपको फिटनेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेट इट बी एनी स्पोर्ट्स. तो उस हिसाब से तो यस, ये गैप निकालना या कवर अप करना, इट्स नॉट इजी टास्क फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन. बट जो you can say top level sports person है, they have made it घर पे जैसे भी हुआ है possibly वैसे उन्होंने किया. you must have seen नीरज चोपड़ा's वीडियोस जो भी है डाले हुए उन्होंने यूट्यूब या फेसबुक पे, कि लॉकडाउन में भी वो घर में कैसे वर्कआउट कर रहे थे. तो many players are there. सिंधु, पीवी सिंधु इज देयर. बहुत लोगों का ऐसा है. तो ठीक है, मतलब लॉकडाउन है, वी कांट हेल्प दैट, उसमें कुछ नहीं कर सकते. बट ऑब्वियसली हम अपने को खुद को मोटिवेट करके घर में कुछ ना कुछ वर्कआउट कर सकते हैं. एंड सबसे बड़ी बात है, आई विल से, कि मेडिटेशन एंड योगा, ये आई पर्सनली फील कि हर एक व्यक्ति ने, हर एक पर्सन ने ये करना चाहिए. इससे आपका यू कैन से माइंड बहुत कंट्रोल रहता है. एंड ये सब जो हम लोग अभी कोविड और ये सब सिचुएशंस हैंडल कर रहे हैं, वो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आई थिंक उससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा आपको. लेट इट बी आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका स्टडीज हो, हर एक चीज में, घर का जो भी बड़े हैं उनका फैमिली काम हो या ऑफिस का है, जो भी है, हर एक चीज में मेडिटेशन और योगा आपको बहुत हेल्प करेगा माइंड पीसफुल रखने के लिए. और एक बार आपका कंट्रोल माइंड पे आ जाए तो यू कैन अचीव एनीथिंग. इट्स माय पर्सनल ओपिनियन. और जितना भी कोई भी आपको डिफिकल्ट या हार्ड टाइम आए, उसमें आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं. तो अभी भी जो भी सिचुएशन चल रहा है, अभी भी ऑनलाइन स्कूल्स चल रहे हैं, अभी भी पूरा लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है. तो इसका बेनिफिट, आई कैन से, आप बेनिफिट ले सकते हैं इसका. थोड़ा टाइम अपने लिए, खुद के लिए निकाल लीजिए. एटलीस्ट हाफ एन आवर प्राणायाम, योगा करेंगे तो उससे, स्पोर्ट्स में तो है ही, आपको स्टडीज में भी बहुत डिफरेंस पता चलेगा. बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट उससे आपको नजर आएगी. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, dear students, if there is a will, there is a way. That only actually ma'am told. So we are going to follow that blindly, okay? So yeah, definitely 2 years is a kind of big span, but nothing to be worried. If there is a way, there is a will, there is a way, okay? So just be there on your track, okay? And do not think that time that got wasted, it cannot be bring back. It is possible if you want to do it. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, students, yes, I can check it that no question is there. I guess that Shakshi has asked almost all the questions. Those questions are roaming in your minds. So
Himlata ma'am, thank you so much for coming here. I know that today you are going to be very busy throughout the whole day because today it's your day. Okay, thank you so much for coming here. We are really very happy to have you here. We are really honored. Okay, thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you.